So we will start with a quick recap of last session. Last session, if you remember, we have seen, do you remember we have seen capacitance of a parallel plate capacitor without and with dielectric. तो दोनों डेरिवेशन वापस से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे and then we'll move ahead with next topic. So we'll start with number 1, capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric and then with dielectric. तो पहला टॉपिक था capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric between the plates of a capacitor, of course. और मैं थ्योरी पार्ट स्किप करूंगा. आई विल नॉट राइट डाउन ईच पॉइंट हियर. वो अभी आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट डाउन थ्योरी. आई जस्ट कीप इट सेइंग बट आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग. तो सबसे पहले कैपेसिटर की बात कर रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यू शुड नो व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग plates, each of area A held parallel to each other at a distance D. इसमें से एक प्लेट इंसुलेटिंग होता है. इंसुलेटिंग मतलब बेसिकली इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कवरिंग होता है. फॉर एग्जांपल ये वायर है. डिड यू सी कि वायर ओपन है क्या? नहीं, उसके ऊपर क्या लगाया? रबर. दैट इज इंसुलेटर. तो सिमिलरली यहाँ पे जो एक प्लेट है दैट इज इंसुलेटेड व्हाइल द अदर इज ग्राउंडेड. तो जो दूसरा प्लेट है वो ग्राउंडेड था. तो अदर प्लेट वॉज ग्राउंडेड. समथिंग लाइक दिस. इस प्लेट पे टोटल चार्ज था प्लस क्यू और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्यू इंड्यूस हो गया था. इफ यू रिमेंबर डिस्टेंस वाज डी. द पोटेंशियल डिफरेंस वाज, इफ यू रिमेंबर, वी. और इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E0 या फिर E. Initially, I'll call this as E. So electric field is E. What was our task? Capacitance find करना है. What is basic formula of capacitance? Q by V. Good. तो बताओ कैसे फाइंड करोगे? रिवीजन है ना, तो रिवीजन तो आपको करना होता है. तो हमने क्या किया था? हमने पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले डायरेक्शन देखा था. What is direction of electric field due to positive plate? Away. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. तो जो पहला प्लेट है लेट अस से P1 जो पॉजिटिव था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम इट. जो दूसरा प्लेट है P2 जो नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स. ओके, तो टूवर्ड्स प्लेट P2. देन यहाँ पे 3 रीजन बन गए. रीजन 1 एंड रीजन 3 आर आउटर रीजन्स, whereas region number 2 is inner region. And if you remember, electric field due to positive plate E1 is given by sigma upon 2 epsilon 0. Similarly, E2 is also given by sigma upon 2 epsilon 0, where sigma is surface charge density plus sigma is surface charge density on plate P1 and minus sigma is surface charge density on plate P2. In region number 1 and region number 3, what do you see? Electric field E1 and E2 are oppositely directed and magnitude तो वैसे भी same था. So when you have two vectors which are equal but opposite, they cancel out each other. मतलब region number 1 में और region number 3 में electric field हो गया cancel. Region number 2 में net electric field. In region number 2, you have net electric field as E1 plus E2. So E1 is sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0, that is equal to sigma upon epsilon 0. So electric field E in between the plates is sigma upon epsilon 0, but sigma is charge per unit area. So you have electric field E equal to Q upon A epsilon 0, equation number 1. Then if you remember, electric field is also defined as potential difference per unit length, V by D. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक अल्टरनेट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस.
Equation number 2. Equation number 1 and 2 say what do you see is left hand side is same, so right hand side will also be same. So from equation number 1 and 2, you have Q upon A epsilon 0 equal to V by D. So Q by V equal to A epsilon 0 by D, लेकिन Q by V is C. तो आपको मिल गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक A epsilon 0 by D. बहुत इजी टॉपिक है, नथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड. सिर्फ इतना बेसिक पता होना चाहिए कि दो प्लेट्स में से एक प्लेट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, नेगेटिव का होता है टुवर्ड्स. और दो प्लेट थे तो दो प्लेट तीन रीजन में डिवाइड कर देगा, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3. रीजन 1 एंड रीजन 3 आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो कैंसिल हो गया. रीजन नंबर 2 में दे हैव सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो गया. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1 प्लस E2 इन बिटवीन द प्लेट्स. तो ये आ गया आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू ए बाय एप्सिलॉन 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो V बाय D. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होगा सेम. तो यहाँ से मिल गया Q बाय V इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D, बट Q बाय V इज कैपेसिटेंस C. सिंपल. अब प्रॉब्लम क्या था, तो हमेशा पहले प्रॉब्लम को समझा करो, बाद में आगे का टॉपिक. अगर क्वेश्चन आने चाहिए ना, बहुत बेसिक चीज है. पहली बात तो क्वेश्चन ही आना चाहिए था कि हमने दो प्लेट क्यों यूज किए. मैंने पहले बताया सिंगल प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा होता है. सिंगल प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि C इज Q अपॉन V. तो मुझे पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, तो दूसरा प्लेट लगाया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी नेगेटिव था और पॉजिटिव का पॉजिटिव था. जब सिंगल प्लेट था तो सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल था, दूसरा प्लेट आया तो नेगेटिव हुआ. पॉजिटिव माइनस नेगेटिव मतलब पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गया. और हमने अब कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला भी बना लिया इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. नाउ व्हाट डू वी नोटिस फ्रॉम हियर इज, अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो ए बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स आप एरिया बढ़ाते जा नहीं सकते हो. देयर इज अ लिमिटेशन टू एवरीथिंग. यू कैन नॉट हैव अ वेरी लार्ज प्लेट एरिया, राइट. और डिस्टेंस को कम भी करने का लिमिट है. अगर आप डिस्टेंस को बहुत कम करते गए, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट. बिकॉज व्हेन टू कंडक्टर्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर दे बिकम वन कंडक्टर. इसको तो बोलते शॉर्ट होना. तो डिस्टेंस भी ज्यादा हम लोग कम कर नहीं सकते, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ाना ही है. तो कैपेसिटी बढ़ाना है तो अभी हम लोग दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले हैं. तो दैट इज टॉपिक नंबर 2, सब टॉपिक capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric between the plates of capacitor with dielectric. Good. अब तक हमने दो प्लेट्स के बीच के स्पेस को खाली रखा था. खाली रखा था मतलब या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा, राइट. अब जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया स्पेस खाली है, तब तक what we have seen, what have we understood. ये हमारे पास एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है P1. दिस इज पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज था. एंड देन यू हैव नेगेटिव चार्ज हियर, प्लेट P2. जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई और मटेरियल नहीं है, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी of a parallel plate capacitor with air as dielectric is given by C0 equal to A epsilon 0 by D. सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिया मैंने, पहले जिसको C बोला था अभी क्या बोल रहा हूँ C0, क्योंकि ये डिफॉल्ट नोटेशन है. अगर आपको बताना है कि दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब एयर है, तो यू आर सपोज टू यूज C0. इज दिस क्लियर? पक्का? श्योर? और यू शुड नो, यहाँ इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस तो D है, लेकिन इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V0, व्हाट डू यू नो इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस. तो यहाँ से आपको मिल गया V0 इक्वल टू E0D. यू शुड ऑल्सो नो, अभी देखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन सिग्मा इज Q बाय A एप्सिलॉन 0. तो ये सारा का विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब विथ एयर बेसिकली.
अब लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये डायरेक्शन बताया था तो मैंने बोला था कि तुमको यहाँ से चार्ज मिल जाएगा, चार्ज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 इंटू ए 0। वैसा भी चलता है, दूसरा मेथड भी है, तो दूसरा मेथड आज देख लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू टॉक अबाउट विद डाइलेक्ट्रिक, पहले तुमको ये बताना है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या क्या है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक यू हैव C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, मतलब with air is given by C0 equal to A epsilon 0 by D. Also we know that electric field between the plates of capacitor E0 is V0 by D. Therefore V0 is E0 into D. ये हमको आगे काम में आने वाला है कि नहीं काम में आने वाला? फिर क्यों लिखा? आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए कि पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इससे थोड़ा आगे सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट डिस्टेंस, जैसे इस डिस्टेंस डी में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? E0। अगर मैं यहाँ पे छोटे रीजन में कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाऊं तो आई कैन नॉट राइट इट दैट वे, क्योंकि मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि इस डिस्टेंस टी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 है तो आई विल राइट डाउन टोटल पोटेंशियल विल बी E1 इंटू टी, क्योंकि टी डिस्टेंस तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1। बाकी बचे हुए में बचा हुआ कितना? D माइनस टी, कितना है? E0। तो टू अंडरस्टैंड दिस, बचे हुए रीजन में मतलब ये टी इतना थिकनेस छोड़ के मतलब D माइनस टी, उसमें कौन है? E0 है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ना V0 इक्वल टू E0D, इसका आगे यूज है क्या? नहीं है। फिर क्यों लिखा? तो तुमको ये पता होने के लिए कि जैसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, सीधे पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक? गुड। अब हम लोग व्हाट वी विल डू इन दिस केस नाउ, वी विल ब्रिंग सम डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पास जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स थे, कैपेसिटर के इन दो प्लेट्स में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे एज यू रिमेंबर, ये P1 प्लेट पॉजिटिव था, ये P2 प्लेट नेगेटिव था। इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट वी विल डू इज we will introduce some dielectric here of thickness T. So thickness of this dielectric is T, and remember the distance between the two plates was D. So as you can see, T is less than D, और T greater than D हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? कैसे होगा? ऐसा कैसा होगा? दो प्लेट्स का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तुम डाइलेक्ट्रिक डाल दो 10 सेंटीमीटर, हो ही नहीं सकता। तो वो तो लॉजिकल चीज है। तो T is less than D, thickness of slab is less than distance between the two plates. Done. Then now as you already know, जैसे ही तुमने डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में लाया, क्या होता है? पोलराइजेशन। मतलब जो नेगेटिव चार्जेस है दे बेसिकली गेट accumulated near the positive plate of capacitor, and the positive charges inside the dielectric they get accumulated near the negative plate, right? ऐसा होता है ना, देखा था ना हमने, when dielectric is placed in an external uniform electric field what happens is polarization। अब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी टाइप का हो, कोई भी मतलब चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, फॉर बोथ द केसेस ऐसा होगा। और ये जो चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए इसको बोलते हो चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ बोला था Q, इसको बोलोगे QP, चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। क्लियर? पक्का? श्योर? देन एज यू कैन सी, एक साइड पॉजिटिव हो गया, दूसरा साइड नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, which is given by EP, which is again same sigma P upon epsilon 0। करेक्ट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है सिग्मा बाय
एप्सिलॉन 0 बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन कौन सा सिग्मा? सिग्मा पी, क्योंकि देखो सिग्मा तो प्लेट्स का था ना, हम लोग प्लेट्स के चार्ज की बात कर रहे हैं कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस क्यों आए? ड्यू टू पोलराइजेशन। तो क्या लिखोगे? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। बट व्हाट इज सिग्मा? चार्ज अपॉन ए, लेकिन कौन सा चार्ज? क्यूपी। So this is the electric field inside the dielectric. So electric field inside dielectric is clear यहाँ तक? राइट। इसी को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ। ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये डाइलेक्ट्रिक इनसाइड है, मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की। आई एम सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस। व्हेन यू पुट अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन, और वो है ईपी इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन 0 या फिर क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन 0। बट क्या सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे? E0 नहीं था क्या? हाँ। E0 का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। ईपी क्या है? राइट टू लेफ्ट। तो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरी गुड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या फिर बिटवीन द प्लेट्स बोलने की जगह पे इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज बेटर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात कर रहा हूं, इसके लिए E इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड कितना था? E0, और इंटरनल कितना है? EP। तो E0 माइनस EP। क्लियर? गुड। अभी गोइंग बैक टू सम बेसिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, बहुत ही बेसिक चीज है ये। अगर आपके पास एक चार्ज है, सराउंडिंग में कुछ नहीं है, मतलब एयर है या फिर वैक्यूम है, ये चार्ज है Q, ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर। राइट। अभी देखो ये जो चीज है ना, ये आपने 11 में 2-3 बार पढ़ी है। एक तो चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक स्टेटमेंट आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब दो मासेस के बीच में क्या मीडियम में फर्क नहीं पड़ता, कुछ है कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केरोसिन है, ऑयल है, वाटर है, कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑलवेज Gm1m2 बाय R स्क्वायर। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, या सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। और फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, क्योंकि फोर्स कोई भी चार्ज तब एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। गुड। तो फोर्स चेंज होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। मैंने इसको ऐसा ही रखा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, सिर्फ मैंने सराउंडिंग में एक मीडियम रख दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इन दैट केस electric field at the same point due to same charge but with different surrounding is 1/4 pi epsilon 0 K Q by R square। ये स्मॉल k है, ये कैपिटल K नहीं है, जिसकी वैल्यू आप लिखते हो, क्या लिखते हो? 9 × 10⁹ लिखते हो ना। कैपिटल K इज 1/4 pi epsilon 0, वो अलग चीज, ये अलग है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ यू सी व्हाट इज दिस? E/K। बराबर बराबर। लेकिन मैंने अभी बताया कि व्हेनेवर देयर इज सराउंडिंग मीडियम एज एयर, तो क्या बोलेंगे? E0। क्या आएगा? E0। बराबर। तो अब हमारे पास पहले दो कैपेसिटर थे, बीच में एयर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E0। अभी आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? उसका कांस्टेंट क्या है? K। तो इसी को मैं अभी क्या बोलूंगा? E0/K। So what is the electric field
in dielectric medium E0 by K. पक्का? श्योर 100%. 100%. Yes. Good. Then अब अगला स्टेप क्या था? Q इक्वल टू व्हाट? Q इक्वल टू वो लिखा है सब, नोट देख के बताओ। मेरे को तो आपसे याद रखवाने में मतलब है, आप नोट देखो, डायरेक्ट बताओ, आपकी मर्जी। मैंने बोला ना Q इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 E0, आपने देखा था। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, तो उसके बाद दिया हुआ है। क्या बोला है वहां पे? अरे कुछ तो लिखा है, नहीं मिल रहा। यू शुड, देयर इज अ इक्वेशन व्हिच गिव्स यू Q इक्वल टू समथिंग समथिंग। हाँ, वेरी गुड। वो कहाँ से आया वो बताओ। E इक्वल टू व्हाट? हाँ, देखो अभी देखो, ऐसा है, ये E0 तुमको पता नहीं क्या E0? मैंने इसलिए बोला ना कि पहले हमने कुछ कुछ तो लिख के रखा है। क्या लिख के रखा है बताओ? E0 क्या है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता इसको Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। तो आपको यहाँ से E क्या मिल गया? E Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। तो व्हाट इज Q फ्रॉम हियर? ए एप्सिलॉन 0 के इंटू E। ये भी काम में आएगा, चार्ज। राइट? क्लियर? गुड। अब गोइंग बैक टू द डायग्राम, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E0, एक है E। E इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है? T। और E0 बाकी कहाँ पे है? तो जहां जहां एयर वहां वहां E0, और कहाँ कहाँ एयर? D माइनस टी, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन दो रीजन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? E0। और बीच में कितना है? E। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between the plates of capacitor is, बताओ कितना? अभी दो अलग अलग लेना पड़ेगा। अरे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E0, ये कितने डिस्टेंस तक है? D माइनस टी तक। दूसरा है E, वो कितने तक है? T। लेकिन E क्या है? E0 बाय K। लिखा था ना E0 बाय K। यस, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो ये आ गया V इक्वल टू E0 कॉमन निकाल लो, D माइनस टी प्लस T बाय K। इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? राइट। तो अब C इक्वल टू Q बाय V, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 2 सब्स्टिट्यूट कर दो 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, from 1 2 and 3, C equal to Q. What is Q? A epsilon 0 E K, ठीक है, and divided by E नॉट, आगे D माइनस टी प्लस टी बाय, राइट? गुड। अब मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डेरिवेशन का मेथड अलग बताया था, अभी मैं अलग बता रहा हूँ। तो इसके आगे अभी क्या करेंगे? हाँ, ओके। एक काम करो, E को E नॉट बाय के लिखो। अभी आपने आपने ही बोला E इक्वल टू E नॉट बाय के। तो यहां से E अपॉन E नॉट कितना आ गया? कितना आ गया E अपॉन E नॉट? 1 बाय के। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या? E अपॉन E नॉट, ये क्या आएगा? और वो के और के क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो देयरफॉर C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 के, यहाँ भी के, D माइनस टी प्लस टी बाय के।
तो के कैंसल, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस P बाय K। गुड, क्लियर, राइट। तो क्या डिफिकल्ट था? नथिंग। तो कभी भी कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद रटना नहीं, पढ़ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड रटाफिकेशन। रीडिंग करने के बाद ना पहले शांति से बैठो, मोबाइल साइड में रख के, बंद करके, और थोड़ा सा सोचो कि आपने जब रीड किया था तो पहले कौन सा स्टेप आया। सबसे पहले क्या आया? इन एयर का। तो जो कुछ तुमको पता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब विथ एयर, वो सारे फॉर्मूला लिख लिए, कहीं ना कहीं काम में आएंगे, इसलिए लिख लिए। कम से कम नहीं भी काम में है तो समझ में तो आएगा कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट क्यों किया, फिर कैपेसिटी चेंज होगा इसके लिए। तो C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, ये लिखा। फिर आपने बोला E0 इक्वल टू V0 बाई डी, तो V0 इक्वल टू E0 डी। फिर आपने बोला E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बट सिग्मा इज Q अपॉन A, तो E0 इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। Then you insert a dielectric between the plates of capacitor, and this dielectric has a thickness of T and dielectric constant K। तो ये करने से क्या हुआ? पोलराइजेशन। तो नेगेटिव चार्जेस will be accumulated on the left plate and positive on the right plate. Because of separation of charges inside dielectric, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, दैट इज EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दैट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कौन सा सिग्मा? सिग्मा P। सिग्मा P क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस, ये जो चार्जेस है, दे आर ऑन द डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस क्यों है? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो सिग्मा P इज QP अपॉन A। तो EP क्या आ गया? QP अपॉन A एप्सिलॉन 0। यहाँ तक क्लियर? गुड। Now because of this electric field, net electric field inside dielectric has reduced. So E equal to E0 minus EP, but this is also equal to E0 by K, so E equal to E0 by K। अब क्योंकि हमको कैपेसिटेंस चाहिए था, तो हमको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों चाहिए, राइट। तो E इक्वल टू E0 by K, लेकिन E0 क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो आपको मिल गया इन टोटल E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K। तो Q इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K इंटू E, ये आ गया चार्ज। अब दो प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 है, और कहां पे एयर है? D माइनस टी। और जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 बाई K। तो E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 बाई K इंटू टी। E0 बाहर बाहर आ गया, क्या बचा? D माइनस टी प्लस T बाई K। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, दोनों को डिवाइड कर दो, मिल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। हो गया सिंप्लीफाई। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें हमको चार स्पेशल केसेस देखने हैं, एंड दीज 4 स्पेशल केसेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो चारों पे अच्छे से ध्यान दो। केस नंबर 1, हमने ये जो डेरिवेशन किया था, इन दिस केस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक T वाज लेस देन D। डेफिनेटली ग्रेटर नहीं कर सकते हो, लेकिन इक्वल टू तो कर सकते हो ना। इक्वल टू करना मतलब व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक फिल्स द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर कंप्लीटली। मतलब हमारे पास जो दो कैपेसिटर के प्लेट्स थे, एक प्लेट था, दूसरा प्लेट था। इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स कंप्लीटली, ऐसा सिचुएशन D इक्वल टू T, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये केस नंबर 1, दिस इज स्पेशल केस नंबर 1। तो स्पेशल केस नंबर 1, इफ the dielectric fills the space between the plates completely, मतलब T इक्वल टू D। तो अभी T इक्वल टू D, तो फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही ना, क्या था?
ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई। अभी सिर्फ डी को लिख दो यहाँ पे, टी को लिख दो यहाँ पे, डी 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 कैंसल। ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी अपॉन के गया ऊपर, तो सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 बाय, लेकिन ये कौन था, सी 0, तो देयरफॉर कैपेसिटी सी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो सेम कैपेसिटर विथ एयर एंड विथ डाइलेक्ट्रिक, दोनों का कैपेसिटी में 10 टाइम्स का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कैपेसिटर of capacity 10 microfarad without dielectric, now with dielectric it will be 100, 10 गुना बढ़ गया। if I have a capacitor with capacity of 20 microfarad without dielectric, with dielectric constant k it will be 200। ना प्लेट एरिया चेंज किया, ना डिस्टेंस चेंज किया, सिर्फ दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया एंड द कैपेसिटी बिकम्स k टाइम्स। क्लियर, राइट, गुड। तो डाइलेक्ट्रिक क्यों हमको यूज करना है, बिकॉज इट इंक्रीजेस कैपेसिटी। नंबर टू इज फॉर एग्जांपल, अभी अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड में, सीईटी में, जेईई और नीट में, चारों में। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल, तो इसके सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ओरली करके बताऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, स्टेप बाय स्टेप 15 स्टेप, और अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट समझा है तो विदाउट एनी स्टेप होता है सॉल्व। नाउ इफ यू हैव दीज टू प्लेट्स एंड इमेजिन, इसमें हमने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिए। पहले डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस था T1, दूसरे डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है T2, तीसरे का T3, T4, T5, ऐसा। तो रिमेंबर, सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स का एरिया क्या है, सेम, लेकिन थिकनेस इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इसका T2 थिकनेस था, पहले का कितना है T1, पहले का कितना है T1। व्हाट इज नॉट चेंजिंग इज एरिया, area of each is same, what is changing is distance या फिर thickness, right? So if you have such a combination, if n dielectrics of same area are inserted, of course same area but different thickness T1, T2, T3, T4 of dielectric constant K1, K2, K3, K4 से लिखा हुआ है वहां पे, लिखा है, देखो लिखा है ना। If different dielectrics of same plate area but different thickness T1, T2, T3 up to Tn and different dielectric constant K1, K2, K3 up to Kn are inserted as shown in figure, such a combination is series combination। ऐसा क्यों हुआ, सिंपल सा लॉजिक है, यहां से लेके यहां तक ये पहला कैपेसिटर बन गया, यहां से यहां तक सेकेंड, फिर अगला आएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा n कैपेसिटर बन जाएंगे। और अगर आप देख रहे हो पहले दो कैपेसिटर में एक ही प्लेट कॉमन है, दूसरे तीसरे में एक प्लेट कॉमन है, तीसरे चौथे में एक प्लेट कॉमन है, तो जब एक ही प्लेट कॉमन हो तो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 1/Cn। लेकिन अभी यहाँ पे आपने एक इक्वेशन डिराइव किया, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, लेकिन D इक्वल टू क्या था T, तो मैं D लिखूं या T लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 बाई टी, तो फिर C1 क्या आएगा, व्हाट विल बी C1, अरे K1 ए एप्सिलॉन 0 बाई T1। अब बोलोगे A1 क्यों नहीं लिखा, एरिया सबका सेम है, थिकनेस अलग अलग है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। और C2 क्या आएगा, K2 एप्सिलॉन 0 बाई T2। कल सिर्फ मैंने D1 D2 लिखा तो इतना कंफ्यूजन कि कहाँ से आ गया।
और टी या डी नोटेशन की बात है, आपको टी लिखना है टी लिखो, आपको डी लिखना है डी लिखो, आपकी मर्जी। टी एन। अब ये सारे के सारे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में होगा सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 1 upon cs equal to 1 upon c1, but c1 is k1 a epsilon 0 upon t1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, प्लस t2 k2 a epsilon 0 प्लस tn kn a epsilon 0. Therefore 1 upon cs equal to 1 upon a epsilon 0 common T1 by K1 plus T2 by K2 plus Tn by Kn. हमको CS चाहिए कि 1 upon CS चाहिए? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लो। Therefore CS equal to A epsilon 0 upon T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 up to Tn by Kn. अब जानबूझ के मैंने एक एक्स्ट्रा केस बताया था आपको। थिकनेस ऑफ ऑल द स्लैब्स आर सेम, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू T बाई N। एक रीजन था बताने का, रीजन ये था कि थिकनेस सेम हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता है। क्यों? मटेरियल लॉजिक डाइज हियर, यू आर नॉट थिंकिंग। मैंने क्या किया, 2 प्लेट्स लिए कैपेसिटर के, एक 2 सेंटीमीटर का ग्लास रखा, फिर 10 सेंटीमीटर ग्लास रखा, फिर 15 सेंटीमीटर वापस ग्लास रखा, फिर ग्लास रखा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होने का मतलब समझ रहे हो? ग्लास 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 ग्लास, सारे के सारे ग्लास। ये तो तुमने पहले ही किया ना, व्हेन द स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड बाय सिंगल डाइलेक्ट्रिक। आ रही है बात ध्यान में? अगर तुमने ऐसा बोल दिया गलती से, मैंने इसलिए लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे वो गलती भी नहीं चलेगी। तुम बोलोगे ये के है ये के है, अरे तो ये सब के लिख रहे हो, तो फिर पहले केस में और दूसरे केस में डिफरेंस क्या है? फिर पहले स्पेशल केस में तुमने यही बोला, व्हेन द प्लेट ऑफ बिटवीन और द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड बाय सिंगल डाइलेक्ट्रिक। तो तुमने 1000 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए ऑफ डिफरेंट थिकनेस, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है। इट इज सेइंग दैट कि यही चीज है, यू हैव सेम डाइलेक्ट्रिक। आ रहा है बात ध्यान में? थर्माकोल 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 तो थर्माकोल रहेगा, तो पूरा का पूरा थर्माकोल ही रहेगा ना। फिर अलग अलग ट्रीट क्यों कर रहे हो उसको तुम? व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? डज नॉट मेक एनी सेंस। तो थिकनेस अलग हो सकता है, क्या सेम नहीं हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिकॉज अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 प्लेट्स के बीच में सिंगल डाइलेक्ट्रिक है। गुड। आ जाते हैं अभी तीसरे स्पेशल केस पे, और जो सो रहे हैं थोड़ा जागो, थोड़ा नहीं पूरा ही जागो, थोड़ा तो जागना ही है तो पूरा ही जाग लो। फिजिक्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा बार बार, तो कुछ नहीं है। आई वॉज द सेम, नींद आती थी ऐसा आगे बैठ के। कम से कम टीचर को तो लगता था जाग रहा है, ओके। बाकी तो ठीक है, समझा नहीं समझा दैट इज डिफरेंट स्टोरी। अभी देखो ऐसा है कि तुमने सीरीज में लगा के देख लिया, अभी क्या बाकी रह गया? तो पैरेलल। सीरीज में क्या सेम था? एरिया। और क्या अलग अलग था? थिकनेस। अभी क्या सेम होगा? थिकनेस। और क्या अलग अलग हुआ? एरिया। देखो अभी मैं बताता हूँ याद कैसे रखना, ये याद रखने का ट्रिक है। ट्रिक पहले आप कुछ ऐसा कर रहे थे, ऐसा लगा रहे थे ना, अब ऐसा नहीं करना। हो गया डन। तो देखो एरिया सेम दिख रहा है क्या? नहीं, प्लेट का एरिया ज्यादा है और स्लैब का एरिया कम है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड थिकनेस इज सेम। ये पहला हो गया।
फिर इसके बाद आप दूसरा भी ऐसा लगा दोगे। ऐसा करते करते यू विल पुट n डिफरेंट स्लैब्स, each of same each of same each of same thickness but different areas। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ऐसे n है तो इसका AN है, थिकनेस सबका सेम है, T equal to D, and such a combination is said to be parallel combination। Good। तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए व्हाट शुड बी सेम, व्हाट शुड नॉट बी सेम, व्हाट शुड बी सेम डी थिकनेस एंड व्हाट शुड नॉट बी सेम एरिया, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पैरेलल है कि ये सीरीज है। जब तक तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो ये C1 बन गया, ये C2 बन गया, ये Cn है, इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2, इसका कांस्टेंट K3 है। अगेन C, if you remember, was K A epsilon 0 by D, करेक्ट। यहाँ पे K1, C1 मतलब K1 और A1, क्योंकि एरिया क्या है, अलग है। एरिया कहाँ सेम है, एरिया अलग है ना, सेम क्या है D। पिछले केस में अलग क्या था, D, T1 T2 T3, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, A1 A2। जब A1 A2 A3 लिखोगे तो D, जब T1 T2 T3 लिखोगे तो A, ऐसे याद रखना उसको, हो गया राइट। प्लस व्हाट इज C2, K2 A2 epsilon 0 by D, what will be Cn, Kn An epsilon 0 by, क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, epsilon 0 by D, पक्का। क्या आ गया, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस 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 Kn An, ये आ गया आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक स्पेशल केस लिखा है मैंने, जहां पे मैंने बोला है A1 A2 A3 A4 An, इन सबका एरिया है A बाय N। और लॉजिकल भी है ना, अगर मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है और मुझे 2 इक्वल एरिया के डालने तो कितने, 5 मुझे 4 डालने तो 2.5 राइट, n डालने हैं तो A बाय N। तो therefore CP will be equal to epsilon 0 by D, A1 A2 A3 A4 सब क्या है सेम, और कितने हैं A बाय N, क्या आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 Kn, बन गया, हो गया। गुड। वापस लॉजिक वही है, K1 K2 K3 K4 इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि वो इक्वल हो गए तो वापस से स्टोरी वही है, all the space is occupied by a single dielectric। लास्ट, अभी तो सोचा नहीं, अभी सोचेंगे। डाइलेक्ट्रिक की जगह पे गलती से 2 मेटल प्लेट के बीच में कंडक्टर ही डाल दिया तो, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर ना। अगर बाय मिस्टेक इमेजिन इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय अ कंडक्टर, इफ द स्पेस between the plates is filled by a conductor, so what you should know is C equal to A epsilon 0 upon D minus T plus T by A, बराबर। हाँ, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये भी थोड़ा सोचो वापस से, कंप्लीटली फेल नहीं हो सकता इसके, मैंने अभी तो बताया क्यों नहीं हो सकता, डिड आई नॉट टेल यू। अरे आज स्टार्ट ही वहां से किया था, शॉर्ट हो जाता है वो, बोले नहीं बताया, आज तो बताया। तो ये जो जब तुम बोलते हो ना कि इफ यू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विथ अ कंडक्टर, तो यहाँ पे एक चीज बाय डिफॉल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता।
कंडक्टर 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 इज वन सिंगल कंडक्टर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस केस में, तो ऐसा कुछ चलेगा। यस, तो T इज द थिकनेस एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब से पता इतना होना चाहिए कि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी। तो K की वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी। नंबर 2, अगर ऐसा है तो यू सिंपली कैन नॉट हैव द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स फिल्ड कंप्लीटली, हो ही नहीं सकता वैसा। तो K इक्वल टू इंफिनिटी डाल दो यहाँ पे, क्या आएगा? C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय, व्हाट इज T बाय इंफिनिटी? 0। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T। डन, गुड, राइट। या तो ऐसा लिखो, या फिर अगर आपको इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ एयर लिखना है, मतलब चाहिए C लेकिन इन टर्म्स ऑफ C0, व्हाट वाज C0? A एप्सिलॉन 0 बाय D। तो व्हाट इज A एप्सिलॉन 0? सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल हैव C इक्वल टू C0D अपॉन D माइनस T। है ऐसा फॉर्मूला? तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अब आप बोलोगे कि फिर ये क्यों नहीं यूज किया हमने? ऐसा है ना, आपको जब क्वेश्चन दिया होता है तो आपको प्लेट एरिया कभी कभी नहीं भी बताया होता है, लेकिन बोला होता है द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एज डाइलेक्ट्रिक इज 10 माइक्रोफैराड, मतलब क्या दिया वैल्यू? C0। तो उस टाइम आपको वो फॉर्मूला चाहिए होगा। जब आपको प्लेट एरिया दिया है तो ये यूज करो, अदरवाइज वो यूज करो। सिंपल है, गुड। तो ये 4 स्पेशल केसेस थे। क्लियर है अब? पक्का? तो यू शुड ऑल्सो रिवाइज वंस अगेन आफ्टर गोइंग बैक। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो फिलहाल मैं पेंडिंग रखूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट है ना इसके बाद, वो फिलहाल हम लोग पेंडिंग रखेंगे। उसके बाद के टॉपिक पे पहले आएंगे, क्योंकि उसके बाद के टॉपिक पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। एनर्जी स्टोर्ड, क्या टॉपिक का नाम? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर फॉर्मेट में आते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज मोर और लेस द वे अ बैटरी गेट्स चार्ज। मैंने बोला मोर और लेस, ओल्ड टेक्नोलॉजी अलग था, अभी लिथियम आयन अलग है, तो मैं मोर और लेस बोल रहा हूँ। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो इफ यू रिमेंबर जब हमने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पे एक स्टेटमेंट था, याद है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब हमको ये देखना है कि एग्जैक्टली कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता कैसे है, तो व्हाट इज द प्रोसेस। अब उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का पहला सेंटेंस है, क्या क्या बोला? देखो क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, some work is done in the process of charging and this work done is stored in the form of, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जहां पे भी आप एनर्जी स्टोर की बात करते हो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। 6 केसेस हो गए हमारे। 11th में हमने देखा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, जिसको हमने बोला था इलास्टिक एनर्जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वायर था, उसके नीचे लोड लगा दिया, इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हुआ। इलॉन्गेशन किसने प्रोड्यूस किया? लोड ने। मतलब लोड ने वायर पे क्या किया? वर्क। वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी इन द वायर। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आए थे, तभी भी बताया था मैंने, चार्जेस को एक एक करके लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था, चैप्टर नंबर 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स दे गो डाउन, और जो नीचे मॉलिक्यूल्स थे जिन पे नेट कोहेसिव फोर्स 0 था लेकिन टोटल कोहेसिव फोर्स ज्यादा था, मतलब नेट तो 0 था लेकिन दे वर एक्सपीरियंसिंग मोर कोहेसिव फोर्स, उनको नीचे से ऊपर आने के लिए क्या हुआ? वर्क डन, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सरफेस, सरफेस एनर्जी, राइट।
तो यहाँ पे भी वर्क डन है। अब वर्क डन कैसे है वो समझ लो, पहले तो डिफाइन कर देंगे। तो व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, when a capacitor is charged, some work is done in the process of चार्जिंग। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलता। अगर वर्क डन होता नहीं तो बिजली का बिल आता नहीं। बिजली का बिल इज एक्चुअली एनर्जी बिल। यू कंज्यूम दैट मच ऑफ एनर्जी। वो जो किलोवाट आवर होता है दैट इज 1 यूनिट। अगर ऐसा चार्जिंग होता ना, हाँ अच्छा था, बनना ही नहीं बिल। लगाओ 10 एसी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके सब घर में ईवी व्हीकल खड़े कर दो। तो व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज, सम वर्क इज डन इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। दिस वर्क डन is stored in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है ये भी। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी समझ लो, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ऑल ऑफ यू। आई कीप ऑन सेइंग यू हैव पोटेंशियल, मतलब यू हैव कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, बराबर। अगर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? 0। बट व्हेन इट इज एट सम हाइट mgh, इसका मतलब जब व्हेन आई अलाउ दिस it will start moving. Why? Because it had potential energy stored. So potential energy मतलब capacity of doing something. तो इसमें भी potential energy है, capacity to start motion. Clear? बाकी जगह पे भी वही है। When I say it is stored in the form of potential energy, मोबाइल को चार्जिंग लगाया तो क्या स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहे हो उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जिंग निकाल लिया, मोबाइल चलता है ना आपका, चलता है ना। इसका मतलब दैट एनर्जी कैन बी यूज लेटर टू रन द सर्किट, मतलब टू रन करंट थ्रू द सर्किट ऑफ योर मोबाइल फोन। तो पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड टू यूज इट लेटर। तो बेसिकली वही इसका मतलब है कि जो चार्जिंग प्रोसेस में वर्क हुआ था वो वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ potential energy. In this case, that potential energy is known as electrostatic energy. Clear? Good. अब एक काम करते हैं, let us consider a capacitor which is fully charged. ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है। मान लो फुल चार्ज कंडीशन में इस पे टोटल चार्ज क्या है? +Q। ऑफकोर्स यहाँ पे -Q। और मैं जब बोलता हूँ +Q तो आप बोलोगे -Q नहीं बात करते। अरे इंसुलेटेड प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट कर रहे थे, चार्ज हम दूसरे प्लेट पे डिपॉजिट करते ही नहीं है, वहां पे इंड्यूस होता है। हम लोग कहाँ करते हैं? P1 पे। P2 तो ग्राउंडेड है, इस पे हमने चार्ज दिया क्या? नहीं, वहां पे चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो जब भी मैं बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव चार्ज की ही बात करूंगा, क्योंकि हम लोग इन रियलिटी एक ही प्लेट को चार्ज करते हैं, दूसरे को नहीं करते। क्लियर? गुड। तो अंडर फुल्ली चार्ज कंडीशन, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट? +Q। कौन सा प्लेट? इंसुलेटेड प्लेट। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? एक काम करते हैं, let us consider a capacitor which is fully charged. The total charge on insulated plate is +Q, and the potential difference between the plates is V. What is the capacitance in this case? Therefore, Q by V. Therefore, capacitance under fully charged situation is C equal to Q by V. इक्वेशन नंबर 1, ये कैपिटल V है, राइट?
बराबर। अब ऐसा तो था नहीं ना कि हमेशा फुल्ली चार्ज ही था, बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल बंद हो गया, चार्जिंग लगाते हो, कहाँ से स्टार्ट होता चार्जिंग? 0%। 0% से धीरे 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 100%। तो एक काम करेंगे, ये था फुल्ली चार्ज सिचुएशन। अब इमेजिन कर लो एक इंटरमीडिएट स्टेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज? हाँ, in between. So imagine we have some in between stage, intermediate stage, at which the charge on insulated plate is plus small q. ना जीरो चार्ज है ना फुल चार्ज है, सम चार्ज प्लस स्मॉल q, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा स्मॉल v, क्योंकि अभी ये बेसिक चीज है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? 1/4πε0, मतलब क्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर चार्ज कम तो पोटेंशियल भी कम, लॉजिकली स्पीकिंग। तो कंसीडर an intermediate stage at which the charge is how much? Q. And what is potential difference? Small v. जब हम जीरो चार्जिंग की बात करते हैं तो पहला चार्ज लाते हैं dq, no work is done, nothing to oppose. But then when you bring dq, work is done against the positive charge जो पहले से था। अब मैं और चार्ज लाऊंगा dq, ओके, फिर क्या होगा? वर्क डन। सो लेट अस ब्रिंग, कहां से लाते हैं चार्जेस? इंफिनिटी। लेट अस ब्रिंग स्मॉल चार्ज dq फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से क्यों लाते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस, अगर इनिशियली डिस्टेंस इंफिनिटी है तो व्हाट इज पोटेंशियल? 0। तो हमेशा इंफिनिटी से क्यों लाते हो? बिकॉज इनिशियल पोटेंशियल विल बिकम 0। तो लेट अस ब्रिंग सम चार्ज dq फ्रॉम इंफिनिटी, राइट, एंड डिपॉजिट। कहां डिपॉजिट करोगे? डिपॉजिट ऑन विच प्लेट? ऑन इंसुलेटेड प्लेट। वर्क डन होगा क्या? वर्क डन, यस। तो देयरफॉर वर्क डन इज, चार्ज क्या लाया तुमने? स्मॉल, तो वर्क डन भी कितना हुआ? स्मॉल। वर्क डन क्या था? चार्ज दैट यू आर मूविंग, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल क्या था? 0। और ये छोटा v क्यों लिखा? क्योंकि इंटरमीडिएट सिचुएशन में व्हाट इज पोटेंशियल? स्मॉल v। तो याद रखना, ईच एंड एवरीथिंग विल मैटर हियर। व्हाई स्मॉल v? क्योंकि जब तुम चार्ज को ला रहे हो, dq को ला रहे हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? स्मॉल v। कैपिटल V कब है? फुल्ली चार्ज। तो हमने जो सिचुएशन लिया वो फुल्ली चार्ज था क्या? नहीं। तो क्या था वो? इंटरमीडिएट। तो dw will be equal to v dq, where v is the potential at that intermediate stage. क्लियर यहां तक? बराबर, राइट। बट दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग ओनली dq. What about total work done? Integration. Therefore, total work done in depositing charge कहां से? 0 से, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। 0 चार्जिंग था, उसके बाद हमने 100% चार्जिंग किया, तो हर बार हमने dq ऐसा लाते गए। तो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 0 चार्ज से Q चार्ज तक, dw। तो therefore work done is equal to 0 to capital Q. What is dw? v dq। क्लियर? यहां तक क्लियर? क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट है, याद है? क्लियर? अब गोइंग बैक हियर, यहां पे मैंने बोला दिस कैपिटल C इज Q बाय V। कब?
कब? फुली चार्ज। फिर हमने यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बताया था, उस इंटरमीडिएट स्टेज पे चार्ज कितना है? स्मॉल v, स्मॉल q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वेरी गुड। तो इस इंटरमीडिएट स्टेज पे कैपेसिटेंस क्या होगा? स्मॉल q बाय स्मॉल v। तो यहां से स्मॉल v क्या मिल जाएगा? स्मॉल q बाय कैपिटल C। अब बोलोगे सब स्मॉल स्मॉल, सी क्यू कैपिटल, बताओ सी क्यू कैपिटल। कैपेसिटेंस प्लेट एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तुमने प्लेट एरिया और डिस्टेंस चेंज किया क्या? नहीं। तो ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। तो अगर फुल्ली चार्ज हो या हाफ चार्ज हो या 25% चार्ज हो या 75% चार्ज हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। हाँ, उसमें एनर्जी स्टोर कम ज्यादा हो सकता है। मैं जब बोलता हूँ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन माई हाउस इज 1000 लीटर, तुमने खाली रखा तो भी कैपेसिटी 1000 है, तुमने आधा भरा तो भी उसका कैपेसिटी 1000 है, तुमने पूरा भरा तो भी 1000 है। तो कैपेसिटर इज लाइक वाटर टैंक, उसका कैपेसिटेंस इज सेम। तुमने चार्जिंग कितना किया वो तुम्हारे ऊपर, तुमने 100% चार्ज किया तो गुड। तो ये जो कैपेसिटेंस है ना सी, ये इट डिपेंड्स ऑन ए एंड डी, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। तो ये क्यू स्मॉल, ये स्मॉल, इसका भी स्मॉल लिख, वैसा नहीं होता है। तो इट इज ऑलवेज कैपिटल, इट इज ऑलवेज कैपिटल। तो यहाँ से आपको v मिल गया q बाय सी। अब ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसके लिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? q बाय सी। मैंने अभी बताया कैपेसिटी क्या होता है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। therefore w इक्वल टू 1 बाय सी 0 टू q q dq। ये सी अच्छे से समझ लो। हाँ, आपकी बैटरी की कैपेसिटी अगर 5000 mAh का है और आप चार्जिंग नहीं कर रहे हो तो बैटरी की गलती नहीं है, उसकी कैपेसिटी कांस्टेंट है। तो रिमेंबर दिस, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं समझ में आया तो कांस्टेंट कैसे बाहर निकालोगे? तो कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स स्क्वायर बाय 2। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। क्या करते हो इसके बाद? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, एंड दिस वर्क is stored in the form of potential energy known as electrostatic energy. This work is stored in the form of electrostatic energy। और याद रखना therefore W इक्वल टू U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। और याद रखना चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे वापस ये चीज याद रहनी चाहिए। जिनको ये याद नहीं, चैप्टर नंबर 12 में आखिरी के 3 टॉपिक गए काम से, मैग्नेटिक एनर्जी और एलसी ऑसिलेशन करके आएगा। एल सी, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस। तो वहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वापस से मैग्नेटिक, वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ऑसिलेशन किसको बोलते हो? टू एंड प्रो। इधर वही हो रहा है। कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इंडक्टर क्या स्टोर करेगा? मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कन्वर्जन होगा मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये इक्वेशन वापस लगेगा। वैसे इसके 2 फॉर्म और है। ऐसा क्यों है? क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है? तो व्हाट इज Q? CV। सब्स्टिट्यूट C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो हाफ CV स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज ये होता है हाफ CV स्क्वायर। और एक फॉर्म है, बताओ बताओ। और ये C की जगह पे, ये C की जगह पे वापस से Q बाई V डाल दो। तो therefore you have U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, बट व्हाट वाज C? एक V और एक V कैंसल, तो क्या आ गया? QV बाय 2, हाफ QV हो गया।
These are the three different forms of potential energy stored in a capacitor. कई जगह पे और आगे वही जो बोल रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहां पे आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? कैपेसिटर में, पूरे कैपेसिटर में, मतलब कैपेसिटर के पूरे वॉल्यूम में. मुझे चेक करना है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड करूंगा? वॉल्यूम से. तो वो आगे आएगा, तब आएगा. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो since we have very less amount of time remaining, so we will solve a very small question. Example 8.15, and I will give you sufficient time to note down. वैसे भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ कोर्स. तो डू नॉट रश इन टेकिंग आउट योर नोटबुक्स. पहले क्वेश्चन समझ लो. When 10⁸ electrons are transferred from one conductor to another, तो एक कंडक्टर से हमने दूसरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए? 10⁸. A potential difference of 10 volt appears between the conductors. तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर, देखो लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक सोचो. ओवरऑल एनी मटेरियल इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही, क्यों? क्योंकि मटेरियल बनेगा किससे? एटम से. एटम किससे बनेगा? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स पर चार्ज नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा उसका. तो एक एटम में ओवरऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना है? सेम. तो मटेरियल में कितना है? सेम. मतलब मटेरियल इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब एक कंडक्टर से आपने 10⁸ इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए, तो जिस मटेरियल से निकाले वो पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली? पॉजिटिव. और जिसने लिए वो, तो समझ में आ रहा है, एक बन गया नेगेटिव प्लेट, एक बन गया. तो ये सिचुएशन कैसा है? कैपेसिटर जैसा. और 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट. और फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस. तो सिंपल. सबसे पहले गिवन क्वांटिटी क्या है देख लो. गिवन क्वांटिटी में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए? तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया? n टाइम्स e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज e, तो 2 का 2e, 3 का 3e, 4 का 4e, n का ne. तो 10⁸ into 1.6 into 10⁻⁻19 ऑफ कोर्स कूलम. तो 1.6 into 10⁻⁻11 कूलम. करेक्ट. इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10 वोल्ट. और फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस. So you are supposed to find out what is C, and of course you know what is C. Q by V. So too simple to solve. Q by V. What is Q? 1.6 into 10⁻⁻11 upon V 10. ऊपर जाएगा तो 1.6 into 10⁻⁻12. -2 मतलब पता क्या होता है? पीको. तो 1.6 पिको फैरेड. डन हो गया, क्वेश्चन खत्म.